गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। Welcome all student in ICT Eco for You channel. Myself Krupesh Nayak. We are going to discuss today revision round that you all know. After 1 to 5 chapters completed, now we are going first chapter revision round. Very important for your revision, and it is helpful how to write section C, D, E, which type of points are essential for the section C, D and E that we are going to discuss. Before we start, we are going to start with this APJ अब्दुल कलाम quotes. अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल होंगे तो बहुत से होंठ कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी. यानी लगे रहो. હરણ દોડવાની 90 કિલોમીટર પર આવરની સ્પીડ હોય છે, જ્યારે વાઘની 60 90 કિલોમીટર પર આવર हिरण दौड़ता है और 60 किलोमीटर पर आवर जो हमारा वाघ है वो दौड़ता है. હરણની શિકાર વાઘ હરણની શિકાર તો કરે જ છે, કારણ હરણના મનમાં ડર હોય છે. હરણને મન એમ છે કે વાઘથી કમજોર છું. આ ડરથી તે વારે ઘડીએ પાછળ જોયા કરે છે. આમાં તેની સ્પીડ અને મનોબળ ઓછું થતું જાય છે. એમાં જ એ વાઘનો શિકાર થઈ જાય છે. कहने का मतलब है कि हमें मनोबल कभी भी कमजोर नहीं रखना चाहिए. हमें भी एक दौड़ लगानी है, और वो ऐसा नहीं घबराते हुए एग्जाम आएगी कितने मार्क हो गए, ये हमारे मनोबल को ठेस पहुंचाए. और हम अच्छी तरह से अगर अपनी स्पीड से अगर हम चाहे वो कम हो ज्यादा हो, फिर भी हमारी स्पीड से अगर जो हम कर रहे काम उनमें थोड़ा सा इम्प्रूव आने के लिए ही ये क्वार्ट रखा है. और हमें डरना नहीं है. पीछे क्या होने वाला है कुछ नहीं है. आगे एग्जाम है, पीछे एग्जाम है, कोई बात नहीं. हमें दौड़ते रहना है, यानी हमें मेहनत करते रहना है, तो हमारा रिजल्ट होगा. हम किसी के शिकार नहीं बन जाएंगे. ओके, तो आई रिपीट अगेन ऑल थैंक यू फॉर ऑल for your great support. Those who are new viewers, please subscribe this channel, ICT Eco for You channel. Subscribe and press the bell button icon here. And secondly, install ICT Eco for You channel from Play Store, and you will get so many information regarding educational 1 to 12 standard, and some of the PDF, some videos are also there. And if you have any doubt, any query regarding this revision rounds chapter, please contact me directly on 966253241. My mobile number is there, or you can mail me cknayak70@gmail.com, or you can comment me on the comment box. So these are the basic information. Before we start our revision round, we going with our first chapter that we learned in past. So here we are slightly going with some of the highlights of these points of first chapter. हम पहले चैप्टर के अंदर उनके मीनिंग के अंदर हमने ये बात जानी थी कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग एक्चुअली उनका वर्ड संस्कृत के अंदर से आ रहा है. संस्कृत वर्ड है अर्थ. अर्थ का मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ मिले, पर्पस उनका लेने का, इकोनॉमिक्स के अंदर से कुछ लेना, कुछ मेहनत करके हम इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करना, उसका मतलब संस्कृत में अर्थ. अर्थ और शास्त्र दो वर्ड मिला के आया है संस्कृत का अर्थ. और साइंस ऑफ बेनिफिट ऑफ द पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ, ये उनका मेन रीजन है. संस्कृत शब्द का जो अर्थ का जो मीनिंग होता है वो पर्पस से कमाना है, कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर से पाना है. इट डिस्क्राइब दैट द पर्पस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, इट इज सच बेनिफिट. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. काफी खतरनाक वर्ड है, देखना अच्छी तरह से देखना. ओइकोनोमोस, oikonomos. Repeat again, oikonomos. Which language? That is Greek word. Greek word
that is oikonomos. Oikos means household and monos means management of household. Keep in mind that these two words very important. Oikonomos. Oikonomos is derived from Greek word. Which word is oikonomos? Oikonomos had two words, oikos and nomos. Oikos means household and the nomos means management of, hence economics means management of the household. This is the meaning of economics and how the Earth Shastra word is from Sanskrit word earth and what is the meaning of word that we discussed already. This all are point already discussed, but slightly we are going to highlight it that you can easily understand how can we write in section D, section E and section C. So सेकंड इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन डी के अंदर आपको पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स के जो ख्याल है, इकोनॉमिक्स की थिंकिंग थी, वो इंडियन थॉट्स के बारे में आप डिस्कस करो। स्टेट द इकोनॉमिक्स थॉट्स ऑफ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आपको जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंदर आपको स्टार्टिंग करनी है यहाँ से। 4 पुरुष शास्त्र की बात करनी है। पुरुष शास्त्र हमारे 4 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष से हमें ये क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं जो कौटिल्य की बात होगी, जो न से चाणक्य 2500 साल पहले उन्होंने जो किताब लिखी थी उनकी बातें हमें करनी। अर्थशास्त्र नाम उसका एक बुक आया था 2500 years ago. Kautilya, who has known as a Chanakya, discussed in his book Arthashastra the purpose of the economics activity undertaken by a state and society. According to Kautilya, the intention of the human being is earth, or that is wealth, the piece of the land which has human settlement, and they are only and only keep in mind the science and explaining the purpose and the utility of the wealth and creation of the अर्थ, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर ये बात उन्होंने की है कि मेन जो फंक्शन है, मेन जो इंटेंशन है, फंक्शन इंटेंशन जो है वो लाइफ का क्या है, वेल्थ के अंदर जो भी साइंटिफिकली हम कमा रहे हैं वेल्थ पे से, उनको कैसे यूटिलाइज करना, अपनी जरूरियात कैसे फुलफिल करना और कैसे उनका अच्छी तरह से कंटेम्प्ट लेना, दिस इज द मेन अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। तो ये बात होती है उनके डेफिनेशन। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट। वेस्ट के अंदर, यहाँ पे वेस्ट के अंदर जो इकोनॉमिक्स कैसे डेवलपमेंट हुआ उनकी अब बात कर रहे हैं। ग्रीक फिलोसोफर, आई रिपीट अगेन, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल गिव हिज व्यू ऑन द इकोनॉमिक इज बुक ओइकोनॉमिका। कीप इन माइंड दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ग्रीक फिलोसोफर। कहाँ का फिलोसोफर था वो? ग्रीक। ग्रीक शब्द के ऊपर अंडरलाइन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्रीक फिलोसोफर, नेम क्या है? एरिस्टोटल। 2 बार एरिस्टोटल। क्या नाम है ग्रीक फिलोसोफर का? एरिस्टोटल। ओके, अंडरलाइन दिस। So Greek philosopher Aristotle give their view on economy in the book of which book Aristotle has written, that is Oikonomika. Which book has Aristotle written? That is Oikonomika. Oikonomika के अंदर उन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा था। However, with the advent of the industrial revolution, just as a division of the labor and its specialization were introduced in the industrial sector, where a piece of work is done by the worker or group of workers who specialize only in the particular job, the knowledge of the philosophy also started getting classified into various specified science. Now, like this physical science, the social science also developed and specialization branches are also there. Methodologies were no longer based purely upon the descriptive logic, but this science standard applying scientific tools and methods. Hence, studying the purposeful human activity was not solely a subject matter of a political or social philosophy, but it also developed as an independent science. And pondering upon the creation of the wealth, एडम स्मिथ। अब यहाँ से बात करते हैं हम, जो वेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी बातें जो इकोनॉमिक्स के अंदर हुई है, वो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी बात हुई उसके अंदर हम जाने तो फिलोसॉफी, एडम फिलोसोफर जो थे एरिस्टोटल ने अपनी डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने समझा दी हमें कि इकोनॉमिक्स एक साइंटिफिकली एक सोशल रीजन है। बहुत सारा उनके अंदर हम जान सकते हैं, उनकी जो डिवीजन है, स्पेशलाइजेशन है, वर्क जो डिवाइड हो रहा है, ये सभी को लेकर बहुत सारा जो हमारे एरिस्टोटल ने बहुत सारी बात बताई। उसके बाद अब आए हैं एडम स्मिथ
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर क्या बात की है एडम स्मिथ ने? एज पर इकोनॉमिक्स इन बुक 1776 वेल्थ ऑफ नेशन, उनकी बुक का नाम, इंपॉर्टेंट ईयर 1776, ध्यान में रखना 1776, 7 में से 1 जाए तो 6, थोड़ा खेलना फिगर के साथ तो फिगर याद रहेंगे। 1776, a book titled An Inquiry into the Nature and the Causes, which is known as the Book of Wealth of Nation in 1776, which has written by Adam Smith. Also, definition of economics as per Adam Smith, economics is the study of the nature and causes of wealth of nation. उनकी definition जो है, which study of nature and causes of wealth of nations. Economics study the exchange or फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय द लेबर। यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, इकोनॉमिक स्टडीज द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय द लेबर, जो लेबर प्रोड्यूस करते हैं वेल्थ को, उनका एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज होने से उनने जो भी पैसे खर्च करते हैं, अपने जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करते हैं, उनसे जो उनको कंटेंट मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनकी बात बताई गई है एडम स्मिथ के डेफिनेशन के अंदर। Economics is a study for the nature and cause of the wealth. Economics is a study of the nature and cause of the wealth. Repeat again. Economics is a study of the nature and the causes of the wealth of nation. ये सभी बातें एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन के अंदर बताई है। यानी एडम स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है वो काफी इंडिपेंडेंट और साइंटिफिकली स्टडी करता है। और दूसरा, उन्होंने उनके डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक्स इज अ वन टाइप ऑफ सोशल साइंस, उन्होंने सोशल साइंस का दर्जा दिया है उनको, यानी इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस, ऐसा एडम स्मिथ ने बताया है। दूसरा, एडम स्मिथ ने ये भी बताया है कि जब कोई भी अपना प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन करने के लिए साइंटिफिकली सोच रखेगा, मैक्सिमम जो लेबर अपने लेबर से जो भी फिजिकली कॉमोडिटी को बनाते हैं उनको यूज करना, उनको एक्सचेंज करने का ये साइंस है एडम स्मिथ के हिसाब से। उन्होंने एडम स्मिथ ने अपनी जो डेफिनेशन है उनके अंदर साफ बताया है कि इट इज अ वन टाइप ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इकोनॉमिक्स जो है वो एक वेल्थ की नेशन है, ऐसा नहीं है कि हमारी खुद की, वेल्थ की है प्रॉपर्ली। एडम स्मिथ ने अपने इकोनॉमिक्स के ख्याल के अंदर कोई वेलफेयर के बारे में बात नहीं बताई, वो उनकी क्रिटिसाइज हुई थी उनकी डेफिनेशन की कि कोई वेलफेयर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर एक वेल्थ को प्रोडक्ट करो, उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करो, यही बात उन्होंने बताई थी। अब मार्शल की बात आई, मार्शल आ गए 1890 के अंदर, 1890, कीप इट माइंड दैट 1890, 1890, 1890, दैट इज 1 + 8 9, 1 + 8 = 9, 1 + 8 = 9, 1890। 1890 के अंदर मार्शल आ गए। मार्शल ने भी अपने कुछ बुक लिखे, उसके अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स उन्होंने लिखा, उसका नाम है पुस्तक का, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने लिखा 1890 के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल हमारे प्रिंसिपल है, ये याद रखना। तो उसका बुक के नाम 100% आपको दिमाग में होगा। मार्शल कौन है? हमारे मार्शल भाई प्रिंसिपल है। वो भाई भैया के साथ हमें अच्छी तरह से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हर एक चैप्टर के अंदर आपने देखे, सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में, आपका पीछे नहीं छोड़े। वो भैया हमारे काफी अच्छे जो प्रिंसिपल है हमारे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890 के अंदर उन्होंने लिखा था। उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ डेली बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स इवेंट्स, जो रोजाना जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं एंड रिलेटेड विद देयर वेलफेयर एक्टिविटी, उनके साथ उन्हें वेलफेयरिंग के बारे में समझ में उन्होंने सभी को बोला है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इज अ वन टाइप ऑफ वेलफेयर एक्टिविटी। Those who are produced in the economy, everyone can get and they fulfill their requirement, and everyone get maximum satisfaction with the help of their commodities and services। ये बात भी उन्होंने बताई है, वेलफेयर के बारे में बात बताई, सेटिस्फैक्शन की बात बताई, and they are analyze the all these events in economy। उनकी डेफिनेशन की भी क्रिटिसाइज हुई है। उनके मार्शल के डेफिनेशन के अंदर भी जो
इनफिजिकल गुड्स है उनकी उन्होंने अवगणना की है। इनफिजिकल गुड्स यानी जो डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, आर्टिस्ट है, जो म्यूजिशियन है, उन लोगों का भी प्रदान है इस सोसाइटी के अंदर, मगर उन्होंने उन सभी की बात नहीं की, तो ये उनकी थोड़ी लिमिटेशन बन गई है। ओनली एंड ओनली वेलफेयर बाय गेटिंग सम ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विस इज नॉट इनफ, ये उनकी डेफिनेशन की थोड़ी लिमिटेशन रह गई। और फिर आ गए हमारे रॉबिन भाई। रॉबिन भाई यानी लायोनल रॉबिन्स। रॉबिन्स का नाम क्या है? लायोनल रॉबिन्स। वो गांधी बापू के साथ आए थे। गांधी बापू के साथ इसलिए क्योंकि 1931 के अंदर उन्होंने अपनी किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इन 1931 रॉबिन्स हैज रिटन द बुक नेम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। यानी उन्होंने एक स्कैरसिटी वाला इकोनॉमिक्स समझाया है। स्कैरसिटी वाले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के ऊपर जा रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, we are doing so many activity in economy and we have to satisfy and we have to balance our requirement with available resources in the market। जो हमारी requirement है, हमारे जो limitations है, जो commodity के है या service के, वो alternative uses वाले है, तो we have to adjust it, we have to balance it। हमें उनके दोनों के ऊपर balance रखना है। तो first of all, our needs are unlimited. Second hand, the resources and the means are available limited, and they all are alternative alter uses are there, right? Alternatively they are used. So these type of means which are very demanding in the market and the source of the data is limited. So if the limited resources are there and their requirement is higher, how to balance between these two parts? This concept given by प्रोफेसर रॉबिन्स। रॉबिन्स ने ये बताया कि जो हमारे सामने साधन है, जो उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो काफ़ी लिमिटेड सोर्सेस वाले हैं और हमारी रिक्वायरमेंट काफ़ी मैक्सिमम है। तो इन दोनों के बीच हम कैसे उन सभी का सेटिस्फैक्शन लेवल मेंटेन करें, यानी उनका जो डेफिनेशन है रॉबिन्स का, वो वन टाइप ऑफ इट इज अ रियलिस्टिक। उनकी जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स में रियलिस्टिक है, आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं, आइडियलिज्म नहीं, उसके डेफिनेशन के अंदर रियलिज्म है, यानी कैसे ये सभी को मैनेज करेंगे। उसके बाद रॉबिन्स को छोड़ के अब हम नए ऊपर जा रहे हैं, वो है सैमुअलसन। सैमुअलसन ने अपनी बातें की है। सैमुअलसन ने भी अपने इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे थॉट्स रिप्रेजेंट किए और 1947 के अंदर आए, जब हमारी आज़ादी मिली उसके एक साल पहले सैमुअलसन ने अपनी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की कुछ इस तरह से दी है कि एक्टिविटी परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ द इनकम इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस एंड और फैक्टर्स एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी अभी, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सैमुअलसन के डेफिनेशन में भी है कि इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ how people and society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternate uses। यानी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, उनके सामने हमारी जो अनलिमिटेड बॉन्ड्स है, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस वाले रिसोर्सेज कैसे फुलफिल करेंगे टू पर्पस वेरियस कमोडिटीज अवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन देम द कंजम्पशन। नाउ द फ्यूचर allocation, now the feature among various persons in the society, it is analysis cost and benefits of improving pattern of the resources allocation। Hence Samuelson talks about choice allocations of scarce resources and evaluation of cost and benefit of doing so। यानी सैमुअलसन ने अपनी डेफिनेशन के अंदर ऐसा बोला है कि जो सोसाइटी है उनकी जो चॉइस से सिलेक्शन है और उनके ऊपर जो रिसोर्सेज द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उनको डिस्ट्रीब्यूट करे और इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, ये उनकी डेफिनेशन के अंदर है। और कैसे स्कैरसिटी वाले मींस से हम प्रोडक्शन करते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सभी बातें उनकी इकोनॉमिक्स के अंदर आ रही है।
So 1947, the year book name is Fundamental of Economics Analysis. Very very important. In the book Fundamental of Economics Analysis, ये दोनों हमने बातें की थी और बातें करते करते हम आ गए हैं एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी. काफी इजी पॉइंट है. एक सेंटेंस के अंदर 3 मार्क्स के अंदर आपको पूछा जाता है व्हाट इज economic activity, what is non-economic activity. So you all know activity performed with the purpose of the getting and earning sum of that is called economics activity. अगर monetary transaction हो रहा है, हम फूड ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, पैसे दे दिए, साथ the economic activity. It is called one type of monitoring activity which are only and only involved by some of the exchange of cost. यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं. और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर कोई भी हमें ऐसी एस्पेक्ट नहीं रखते सोसाइटी से और हम सिर्फ चैरिटी के बेस पे या हम किसी के ऊपर एक्टिविटी विच इज परफॉर्म विदाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक गेन. इकोनॉमिक गेन हमें नहीं चाहिए. इकोनॉमिक गेन यानी अगर कुछ हम दे रहे हैं तो हमें पैसे चाहिए. टीचर, लॉयर, डॉक्टर वो सर्विस दे रहे हैं मगर सामने पैसे ले रहे हैं. तो विदाउट हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ मनी, इफ सम आर इंक्रीज देयर service without any type of help, any type of monitoring rewards, that is non-economical activity. एग्जाम्पल हमने बहुत सारे लिए थे. एक बार वीडियो पोस्ट करके देख लेना, पता चलेगा आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर. ना वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. आपको डेफिनेशन के अंदर या फिर आपको सेक्शन डी के अंदर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है. तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट्स. किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की, किसी एक इंडिविजुअल फर्म की, किसी एक इंडिविजुअल टेक्सटाइल मार्केट की या डायमंड मार्केट की या कोई भी स्कूल के किसी एक क्लास की अगर हम डिटेल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी the behavior of individual units of the economy, and microeconomics analysis uses the principle of the magnetism to anyone how individuals units are decided. The unit of the demand analysis is the consumer, that is supply and analysis is the firm, and therefore labor market is labor. यहाँ पे जो मीनिंग बताया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब किसी एक का यूज करो, किसी एक की स्टडी करो. यूनिटरी इकोनॉमिक्स वन टाइप ऑफ किसी एक ही फैक्ट्री के किसी एक ही कॉर्नर को हम ध्यान में ले या किसी एक ही अच्छी तरह से जो डेवलप हो रहा है उनको ध्यान में लेते. ये सब कुछ जो हम करते हैं वो किसी एक के ऊपर करेंगे. मगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, सभी होल कंट्री के अंदर सेंसस पूरे देश की, आमदनी पूरे देश की, जो लिटरेसी रेट पूरे देश का, पोवर्टी रेट पूरे देश का, ये सभी की जो अगर हम कंपैरिजन करेंगे, calculation करेंगे, तो it is a one type of macroeconomics. So microeconomics and macroeconomics over here that we already learned while our chapter is going on. Here there are 3 types of way for the presenting our data, information data, statistical data, that is descriptive manner, by the way of data table, and by the way of graph that we already discussed. Very easy for you. You have to getting 3 marks from it very easily. Why? Because descriptive manner, for example, the law of demand state when the price is commodity falls if demand expand. हम जानते हैं कि descriptive manner ये है कि अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी, descriptive manner है. उसे टेबुलर मैनर के अगर हम बात करें तो प्राइस और डिमांड की हम यहाँ पे यही स्टेटमेंट को टेबुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ऐसे कि 20, 15, 10 ये प्राइस हमारे कम हो रही है, यहाँ डिमांड बढ़ रही है. दिस आर द टेबुलर फॉर्मेट. नाउ थर्ड पॉइंट इज बाय द वे ऑफ table, then by the way of diagram or curve. For example, the demand curve can be demand low can be represented by the demand curve as below. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा है वो प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है, डिमांड कम होती जा रही है, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट टू राइट तक हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं. तो ये जो चेंज है वो टेबल के अंदर भी हम दिखा सकते हैं. तो ये पॉइंट भी हमने कंप्लीट किया था. इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिए. How to remember this 4 point in exam? Which are the tricks? उनकी ट्रिक क्या है वो हम सब कुछ डीप में जब क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे उसके अंदर आप सभी को पता चलेगा. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज कीप वॉचिंग this video till the end, because in the last some of the questions that in section C and D you can easily write, but the points is very important. How to remember your point is very important. Once you
remember your points with the trick, then you can easily write the answer. So importance of the statistical information have 1, 2, 3, 4 point. Statistical information support you confirm the principle, gives an idea about the changing and the trends, then to make comparative study, then to make physics प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, ये सभी चारों पॉइंट सेक्शन डी के अंदर आ सकते हैं आपको 3 मार्क्स के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है आपको। तो ये सभी हमने डीप में डिस्कस किया, सिर्फ पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं, और जब क्वेश्चन आंसर के अंदर जाएंगे थोड़ा डीप में डिस्कस कर लेंगे क्या लिखना है उसके अंदर। सेकंड, सम रिक्वेस्ट एज एस्पेक्ट टू कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इन डायग्राम। जो डायग्राम के अंदर हम ड्रॉ करते हैं वो कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है, वो हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर है। यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा कहाँ से मिले, सोर्स वो ध्यान में रखना है। Clarity regarding dependent and independent variable, very very important. On X always on, some dependent data are always on Y, and some independent data always on X. This is the clear. And then the proper scaling, appropriate scaling. Third point is 1 centimeter 10,000 units, 1 centimeter 5 years, 1 centimeter 10 each. These all are very very important, because the diagram is not more not less, it must be appropriate scaling, that we can understand easily the effect of other. In other, to obtain the systematic graph with the clarity and appropriate size, proper scale must be taken on the both side of axis. Scale are measures taken into the represent actual data in the diagram. If actual data is too large, say 1000, that is 1 lakh, then such a data cannot be directly represented in chart, but we have to measuring it like 1 centimeter to 10,000, 1 centimeter 5 years, that is the appropriate scaling. Now, very very important, presenting quantitative और numerical information in diagram. कितने प्रकार के डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। तो फर्स्ट इज बार डायग्राम, सेकंड इज ग्रुप और क्लस्टर बार डायग्राम, and third is pie diagram. We can see here, if the independent value and the dependent value are, and only single data are there, if single data is there, if where are we can see here, and the production of in lakhs and ten we can see here. अगर कोई एक ही ईयर, एक ही टाइम, एक ही प्लेस के बारे में अगर कोई एक ही हमें डिपेंडेंट डेटा मिल रहे हैं, तो वो हम सिंपल बार डायग्राम के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। और सेकंड, if the chart are used when the dependent variables are grouped in more than one. If dependent that is on Y, we can see it is dependent data, and it is more than one, grouped in more than one category, more than one category। आप ये देख सकते हो 1951 के अंदर मेल, फीमेल और टोटल तीनों अलग अलग है, यानी तीनों के डेटा यहाँ पे एक ही 1951 के अंदर हम देख रहे हैं, यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंट डेटा आर सिंगल बट डिपेंडेंट डेटा आर इन ग्रुप. So if the group in one or two category, it is very easy to draw their cluster bar diagram. That is called group bar diagram also. When we want to examine the literacy rate of the different years of the Gujarat, we can use the group bar chart. So the male, female and total literacy rate on this. Here this is zigzag line for the male, vacant place that is female, and the cross line that is total. So with the help of this diagram we can show that here one year 1951 30.17 are male, here that is 13.17 are male, 12.79 that is female, and total 21.09 that is total of this all. उसी तरह से हमने 1961 11 71 81 91 के अंदर दिखा है, तो x के ऊपर ऑलवेज डिपेंडेंट नहीं लिखा जाता, इंडिपेंडेंट ही लिखा जाता है, और y के ऊपर डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट एक से अगर ज्यादा है दैट इज ग्रुप और क्लस्टर बार इज इंपॉर्टेंट. Second, pie chart. A pie chart is a circular statistical graph which is divided into sectors to the irradiance and the numerical proportion of the data. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरे सर्कल 360 के ऊपर डिवाइड हुआ है, 360 के ऊपर अलग अलग ये डिवीजन के अंदर डिवाइड हुआ है, और हर एक को कंपोनेंट वैल्यू से, कंपोनेंट वैल्यू को टोटल वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं और उनका 360 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उससे जो भी रेट आते हैं वो हम यहाँ पे 90, 180, 270, 360 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं. तो ये थर्ड स्टाइल हुई. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट, देयर आर 1.10.1 के अंदर 2 पॉइंट है, यानी
एवरीडे बिहेवियर के अंदर 2 पॉइंट है, उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर 2 पॉइंट है, और नेक्स्ट लास्ट वन इज प्रोफेशनल के अंदर कोई पॉइंट नहीं है। तो ध्यान में रखना है सेक्शन डी या सेक्शन ई के लिए एज पर ब्लूप्रिंट there is no possibility in section E in this chapter, but it may be possibility some of the examiner have their own mind and they can change the blueprint also, because in last sentence in the economics of blueprint of economics board also suggest that those who are examiner they can change, वो change कर सकते हैं, 99% होने के chances नहीं है, मगर वो चाहे तो इस चैप्टर में से भी ये सेक्शन ई के इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स को 5 मार्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, एंड सेकंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एंड थर्ड प्रोफेशनल। अब देखना एवरीडे बिहेवियर के अंदर 2 है, इंटरनेशनल और हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल और इंटरनेशनल दोनों है। यहाँ भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर डिसीजन मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी, ये दोनों का हमें ध्यान में रखना है पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल। तो ऐसे हमने सब कुछ कंप्लीट किया था हमारे जब हमने चैप्टर समझाया था। तो अब हम आ रहे हैं अपने अकाउंट में जो रिवीजन राउंड अभी जो होने वाला है उसके ऊपर हम आ रहे हैं। तो हर एक अपने हाथ में एक नोट पेन हाथ में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में आ रहा है तो कैसे क्वेश्चन आंसर लिखने वो आपको समझ में आ जाएगा। आप हर बार हमसे पूछ रहे थे कि सेक्शन ई बी ई के क्वेश्चन कौन कौन से लिखने हैं, तो एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है वो लिखने नहीं है, आपको पहले एमसीक्यू बनाए आप सभी ने, और एमसीक्यू के बाद अब आपको सी डी ई में कौन कौन से क्वेश्चन लिखने हैं वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सेक्शन ए की ओर। सेक्शन ए के अंदर आपको एमसीक्यू के तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज देयर, व्हाट इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कॉल्ड, that is called economics. Second point, which Greek word is economic derived? So oikonomos. I repeat again, which Greek word is economic derived? Oikonomics. Oikonomos. Oikonomos. Repeat again. काफी खतरनाक वर्ड है, 2-3 बार बोलते रहना, रट्टा नहीं मारना, 2-3 बार बोलना। Which Greek word is economics derived? That is called oikonomos. Oikonomos, very very important word. Which Greek word is economics derived? Oikonomos. Who is known to be the first economist to have started studying economics as a separate science? Separate science, अलग एक इकोनॉमिक्स को एक साइंस की तरह किसने लिया था? That is our father, that is Adam Smith. In 1776 he wrote Wealth of Nation book, and in his book he said that economics is a science of separate science. Who introduced economics as a real science? Real science हमारा रॉबिन का आर और रियल का आर ध्यान में रखना। कैसे याद रखना है क्वेश्चन को, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। हर एक क्वेश्चन तो आप पढ़ोगे मगर याद रखने का तरीका आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। रॉबिन का आर और रियल का आर, रियल यानी रॉबिन हमारे रियल है। इन हाउ मेनी ब्रांचेस इज इकोनॉमिक्स classified by the methods of study and analysis? There are 2 types. Which 2 classified in the methods of study? That is microeconomic study and macroeconomic study. Micro, that is separated unit, and macro, that is sum of the all. On which axis are the independent variables like country, rainfall, etc. usually present? That is always this all data is known as a one type of totally independent. So independent all are always on x-axis, and x-axis are that is horizontal axis. Who has written the book Principle of Economics? मैंने बोला था रिवीजन के टाइम में कि प्रिंसिपल हमारे कौन है? मार्शल भाई। मार्शल हमें सब कुछ प्रिंसिपल की तरह सिखाते हैं। तो मार्शल हैज रिटन द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आए सभी, वो आपको एक बार सिर्फ पढ़ने के लिए लिखना नहीं है। कीप इन माइंडेड, यू हैव टू ओनली डिक्टेट इन योर माइंड, नॉट इन योर नोटबुक, बिकॉज यू ऑलरेडी find out so many questions from your textbook, and if these questions are not in your notebook then you have to write. अगर आपके ये क्वेश्चन आपने जो निकाले उनमें से नहीं आ रहे तो आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं। सेकंड, अब वन लाइनर की बात हो रही है। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय रॉबिन। रॉबिन ने जो डेफिनेशन दी है, तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन की जो वर्तणूक है उनके ऊपर वो स्टडी करता है,
as a relationship between ants and scare means which the alternative uses के सामने उनकी जो अनलिमिटेड बॉन्ड्स है, उनके सामने जो जो हमारे सोर्स है वो स्केयर वाला है, काफी स्कैरसिटी वाला है, और जो मीन्स है वो स्केयर मीन्स है, यानी उनका अल्टरनेटिव यूजेस भी है, वो स्केयर भी है, क्योंकि हमारी जो डिमांड है, वो हमारी जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है, तो उनके सामने जो मीन्स होंगे वो स्केयर होंगे, तो उनमें कैसे बैलेंस करते हैं उनका रिलेशनशिप रॉबिन्स ने उनकी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के अंदर बताया है। विच इज द फोकस पॉइंट ऑन सैमुअल्सन्स डेफिनेशन, सैमुअल्सन ने कौन से अपने पॉइंट के ऊपर अपने डेफिनेशन के कौन सा पॉइंट अच्छी तरह से उन्होंने डिस्कस किया है। द फोकस पॉइंट ऑफ सैमुअल्सन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज choice of society and allocation of scarce resources यानी यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उन्होंने स्कैर दिखाई है, जो कम मिल रहे हैं, रिसोर्सेज जितनी डिजायर है, जितनी डिमांड है उतने नहीं मिल रहे हैं, और उनके जो एलोकेशन यानी हर एक जो हमारे इकोनॉमी के अंदर लैंड लेबर इंटरनेशनल कैपिटल के अंदर जो बांटते हैं हमको, उनकी जो सोसाइटी के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, अनइक्वल हो रही है, उनका उन्होंने स्टडी किया है। द फोकस पॉइंट ऑफ द सैमुअल्सन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज चॉइस ऑफ सोसाइटी, सिलेक्शन हो रहा है सोसाइटी के अंदर। कौन सा सिलेक्शन, कैसे हमारी रिक्वायरमेंट को सामने जो मीन्स है, स्केयर मीन्स है, उनसे हम सेटिस्फाइड करें। Which are three ways of representing economics information? Very, very important. The three ways of representing economic information are: first is descriptive method, second is tabular method, and third is graphical or diagrammatic method. DTG याद रखना है हमें, याद रखने के लिए DTG, DT तो आपको पता होगा, राइट, D और T और उसके बाद G, DTG, repeat again, DTG, D descriptive method, T tabular और G graphical, D for dog, T for tiger and G for grapes. हमें D for dog यानी कुत्ते को, T for tiger यानी बाघ के साथ ग्राफ खाने ले जाना है, ग्रेप्स खाने ले जाना है। याद रखने का तरीका है, याद रखना ये सभी, थोड़ा सा ऐसी स्टोरी बनानी पड़ेगी हमें याद रखने के लिए। अगर DTG आपके दिमाग में है, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलेशन एंड ग्राफिकल आपके दिमाग में है, you can easily get 1 marks, or if you have been asked this question in 2 marks, you can easily or in 3 marks. मगर DTG आपके दिमाग में होने चाहिए। डॉग को टाइगर के साथ ग्रेप्स खाने ले जाओ, डॉग को टाइगर के साथ ग्रेप्स खाने ले जाओ, ये कोई मिलता जुलता नहीं है, मगर एक ऐसा बनाना है हमें जिससे कि आप अच्छी तरह से उनको याद रख सको। डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलेशन मेथड एंड ग्राफिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। On which axis are the independent and dependent variable? Usually very, very important, and repeatedly this is for MCQ also. This is one line also. On X there is a independent variable and on Y there is a dependent variable. What is pie diagram? Very important. Pie diagram is a circular diagram which is divided into the sector as per their respective degree. डिग्री के अंदर किसी भी हम अपने रिलेटिव डेटा को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं, तो 360 के अंदर डिवाइड करने के बाद जो हमें डायग्राम मिलता है, दैट इज कॉल्ड पाई डायग्राम। दैट इज कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 एंड ईच डिग्रीज आर डिवाइडेड इन वन सर्कल, दैट इज कॉल्ड pie diagram. So pie diagram is a circular diagram which is divided into sectors. Divided into sectors, very very important word. Divided into sector for what? As per their respective degree. Divided into sector. Repeat again. Which is divided into sectors. Divided into sectors as per their respective degree. ये सभी आपको वन लाइनर के आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं. Keep in mind that. Pause it and then you have to write this all. Then second. Now for C and D section, very very important section for you. C and D के अंदर आपको क्वेश्चन आने के चांसेस कैसे है? Explain the difference between economic activity and non-economic activity. ये सेक्शन C या D के अंदर आ सकते हैं आपको। आप सभी को पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, वो भी आप सभी जानते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल भी आप जानते हो। तो सबसे पहले उनके पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं कि हम उसे कैसे डिफरेंस को दिमाग में रखेंगे और कौन से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड एग्जांपल, थर्ड अर्निंग एंड स्पेंडिंग, देन डिपेंडेंट। डबल डी के ऊपर हमें रखना है, DE, डबल डी, डी स्क्वायर, याद रखने के लिए। इकोनॉमिकल
इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अगर डेफिनेशन, एग्जांपल्स, अर्निंग एंड स्पेंडिंग एंड डिपेंडेंस टू गेट अदर, ये आपको याद रखने का तरीका है। डी स्क्वायर, ई स्क्वायर, डीई, डीई, एबीसीडीई, एबीसीडी के अंदर डी और ई आजू बाजू में है, ध्यान में रखना, डीई, ए बी सी डी ई, मगर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर, डी स्क्वायर यानी डेफिनेशन का और डी डिपेंडेंस का, और ई स्क्वायर यानी एग्जांपल का और अर्निंग एंड स्पेंडिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन का। एन एक्टिविटी फॉर द अर्निंग इनकम फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा कि any activity which are earning income and satisfaction the human wants, it is economic activity. And non-economic activity के अंदर an activity which is not for earning income to satisfy the human wants is non-economic activity. An activity which is not for earning income to satisfy the human wants, यहाँ पे earning कुछ नहीं करना है, spending भी कुछ नहीं करना है, मगर उनसे अगर किसी की हम नीड्स को फुलफिल करवा देते हैं तो ऐसी एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। A trader, second point, a trader income from the trade, a farmer from farming, a teacher from private coaching, a doctor from treating patient, a nurse from her serving in hospital. These all are known as a economic activity. So these are the example. Example are very easy for you. Teacher, doctor, nurse, lawyer. These all are given service and getting something. In non-economical activity, a teacher teaching his own child, nurse nursing her own child, a doctor treating his wife, a trader consuming his own goods, a farmer giving gift of corn to his relatives. These all are examples of non-economic activity. There is no any rewards from them. They are doing with this only for the purpose of some love, some affection, some feelings, so that it is non-economic activity. Third point is economic activity involves earning of the income or spending it through exchange of goods and service. We have to exchange our goods and services. Earning and spending are there. Presence of expenditure and earning are there. Earning and spending are there in economical activity. But in non-economic activity is motivated by the feeling of love, respect, free, etc. does not involve exchange of goods and service. So there is no possibility of earning and spending in non-economic activity, but in economical activity there is 100% presence of earning and spending economic. Fourth point is depending others. There is an elements of dependence in economic activity. In order to buy some commodity, in order to buy some books, in order to buy some stationery, यू शुड फाइंड अ सेलर। आपको ढूंढना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, तब जाके यू कैन डू एक्टिविटी इन इकोनॉमी। बट इन नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कैन बी इंडिपेंडेंट। रीडिंग अ बुक is a non-economical activity. There is no elements for dependence of someone else. दूसरे के ऊपर हमें कोई भी डिपेंडेंस रहना नहीं पड़ेगा। हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, किसी को फ्री में बुक देना चाहते हैं, किसी को फ्री में कोई सर्विस देना चाहते हैं, नो नीड ऑफ डिपेंडेंस टू अदर। हम अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, कोई हमें उसमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो ये सभी डबल डी डबल ई, दैट इज कॉल्ड डी स्क्वायर, ई स्क्वायर इज differences of non-economic. Now specify the differences between microeconomics and macroeconomics. Very very important for section D और section E. 3 मार्क्स के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है कि what is the differences between microeconomics and macroeconomics. Here same first definition, example, behavior of individual and study of government economic, and 4 study point. ध्यान में रखना है, 4 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। DEBS definition, example, behavior, study. Definition, example, behavior, study. Definition, example, behavior, study. 4 पॉइंट, 2-3 बार दोहराना। Definition, एग्जाम्पल, बिहेवियर, स्टडी। ये 4 पॉइंट दिमाग में रखो। अगर 4 पॉइंट दिमाग में है तो आप अच्छी तरह से पूरी डेफिनेशन लिख पाओगे, एग्जाम्पल भी लिख पाओगे, मगर पॉइंट कौन सी लिखने वो दिमाग में घूमते रहने चाहिए हमें। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, बिहेवियर, स्टडी। फर्स्ट इज डेफिनेशन। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ ए कंपनी। कोई भी इकोनॉमी के अंदर किसी इकोनॉमी के कोई यूनिट को हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड माइक्रोइकोनॉमिक स्टडी। एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। हर एक का अगर हम स्टडी करेंगे तो वो इकोनॉमिक्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक बोलेंगे।
Study of price determinations, equilibrium, output, level of the firm, etc. This is the example. Study of price determination of equilibrium, output, ये जो स्टडी है वो सभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दे सकते हैं। किसी एक फर्म की टर्नओवर के बारे में, किसी एक यूनिट का सेलिंग के बारे में, सब कुछ अगर हम करेंगे, दैट इज स्टडी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशंस। नाउ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, production of some of the data, production of something, these all are known as macroeconomics. Now third point, study behavior of individual. Micro studies the behavior of individual units of the economy. Individual unit की behavior के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेगा, यानी इंडिविजुअल कस्टमर की सोच क्या है, उनकी डिमांड क्या है, इंडिविजुअल सप्लायर के सप्लाई क्या है, इंडिविजुअल किसी एक यूनिट, एग्रीकल्चर यूनिट के अंदर किसी एक क्रॉप की प्रोडक्शन क्या है, दैट इज द बिहेवियर स्टडी पॉइंट फॉर इंडिविजुअल समवन. Then macroeconomics help the government to frame the economic policy and economic institute for the decision making. Government के लिए काफी इंपॉर्टेंट है मैक्रोइकोनॉमिक्स की स्टडी. मैक्रोइकोनॉमिक स्टडी हेल्प गवर्नमेंट टू फ्रेम इकोनॉमिक पॉलिसी. वो आर्थिक नीति अगर बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट फॉर डिसीजन मेकिंग, किसी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की वो कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करना चाहती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज फ्रॉम द स्टडी ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स पॉलिसी फॉर मैक्रोइकोनॉमिक्स कैन बी डिटरमिनेंट. यानी अगर हम माइक्रोइकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो मैक्रो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. जो मैक्रोइकोनॉमिक्स की स्टडी से इंडिविजुअल यूनिट की कोई भी ब्रांचेस के अंदर कोई चेंज करना है तो हम कर सकेंगे. सो from the study of macroeconomics, the effect of individual economic units can be studied. ये ध्यान में रखना कि इकोनॉमिक्स के अंदर from the study of macroeconomics, the effect of individual economic units can be studied. तो ये 4 पॉइंट अच्छी तरह से दिमाग में रखना. सी और डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Statistical information is necessary to know the direction and condition of growth of an economy. Explain. Very important question for you in section C also or D also. Statistical information is necessary. जो हमें डेटा मिलते हैं वो necessary है. To know the direction. Direction यानी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी बात करें. एंड कंडीशन. कंडीशन यानी कैसा है हमारा इकोनॉमी. ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन. ये स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करना है कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो नेसेसरी है अपनी डायरेक्शन और हमारी जो दशा इकोनॉमी की क्या है, प्लस है माइनस है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनके लिए ये इकोनॉमी के लिए स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी है. क्यों नेसेसरी है? So first point is with the help of the statistical information we can obtain and data of the direction and magnitude of the change in the economics. Economics के अंदर हम जो भी डेटा हमारे पास है उनका हम एक स्टडी करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद हम अच्छी तरह से उनके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे. फॉर एग्जांपल वी कैन नो द ट्रेंड्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द नेशन, चेंज इन द रेवेन्यू ऑफ द पर्टिकुलर फर्म्स, प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सेक्टर है, उनके डेटा अगर मिलते हैं, सपोज 2011 की सेंसस जो हमारी जनगणना हुई उसके अंदर से बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वे हमें मिले, उनसे कितनी हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, कितने परसेंट बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं, कितने परसेंट का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, कितने गवर्नमेंट के अंदर सर्विस कर रहे हैं, कितनों के जो हाउस की कंडीशन है वो कच्चे हैं, पक्के हैं, उनकी फ्लोरिंग क्या है. ये सभी इकोनॉमिक सर्वे हमें एक डायरेक्शन के ऊपर ले जाएगा कि हमारी इकोनॉमी कंडीशन कैसी है. फॉर एग्जांपल वी कैन कंपेयर ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन नेशंस बिटवीन. हम कंपैरिजन कर सकेंगे. ये जो डेटा पॉइंट है उसको हम ध्यान में लेकर डेटा ऑफ नेशनल इनकम, हमें जो इनकम के डेटा मिलते हैं, हमें जो पर कैपिटा इनकम के डेटा मिलते हैं, हमें जो नेशनल रियल इनकम के डेटा मिलते हैं, उनसे हमारा इकोनॉमी कहाँ जा रहा है वो हमें पता चल सकता है. अगर नेशनल इनकम के डेटा ऊपर जा रहे हैं, लगातार इनकम बढ़ रही है, तो वी आर इन गुड कंडीशन, हमारी दशा अच्छी है, हमारी कंडीशन अच्छी है, हमारी डायरेक्शन सेम प्लस में जा रही है. कंपैरिजन कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. हम आसानी से कंपेयर कर सकेंगे. दो तरह के कंपैरिजन की बात करनी है आपको यहाँ पे. फर्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ टाइम बेस एंड सेकंड इज प्लेस बेस. कंपैरिजन 1951 के एवरेज एज को हम 2011 के एवरेज एज से करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 48 राउंड अबाउट हमारा 1948 के अंदर हमारा राउंड अबाउट 35 एवरेज एज था, 37 एवरेज एज थी, वो 2011 के अंदर 68 एवरेज हो गई है.
हमारी तंदुरुस्ती बढ़ी है, मेडिकल अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है, ये हम नतीजा लगा सकते हैं फिर विद द हेल्प ऑफ डेटा। और प्लेस बेस हमारे कंट्री की नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पीपीक्यूएलआई के अंदर, एचडीआई के अंदर हम दूसरे कंट्री के साथ ये सभी कंपैरिजन कर सकते हैं, ताकि कंपैरिजन बेस्ड डेटा को हम अपने इवोल्यूशन के लिए जान सके कि हम कहाँ पे हैं दूसरे कंट्री के साथ। देन क्लियर पिक्चर ऑफ द ट्रेंड, fact about economic parameters can be represented more clearly with the help of statistical information, which can give clear picture of their trends and can be easily understand। अगर लगातार poverty के डेटा रिड्यूस हो रहे हैं तो इट इज वेरी गुड कंडीशन फॉर इकोनॉमी के वो डेटा के ट्रेंड हम देख रहे हैं कि अगर पहले 50% पुअर्टी है, उसके बाद 40%, 30%, 20, 19, 80 ऐसे अगर डिक्रीजिंग मोड पे अगर वो ट्रेंड जा रहे हैं तो वी कैन इजीली फाइंड आउट देयर इज इंक्रीमेंट इन इकोनॉमी। सो दिस आर द डेटा, दिस आर द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नेसेसिटी that we can find out the trend and direction of economy। So this is very very important। so आपको ध्यान में रखना है डेटा of national income, per capita income, whatever the data, then it is comparatively data, दूसरे के साथ compare कर सकते हैं। clear picture of the trend with the help of the statistical information we can give the actual direction and condition of our economy। ओके, नाउ फॉर सेक्शन ई। सेक्शन ई के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, गिव द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। गिव द पॉइंट्स यानी सिर्फ पॉइंट नहीं देना है, आपको उसके अंदर में लिखना भी है। जैसे मैंने आगे बताया कि सेक्शन ई का क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट के हिसाब से 5 मार्क्स का नहीं हो सकता, मगर चेंज करने की पूरे पावर्स टीचर्स के पास होते हैं, तो मे बी दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन सेक्शन ई आल्सो। सेक्शन डी के अंदर ही ऐसे तो पूछे जाते हैं, मगर सेक्शन ई के अंदर भी आने के चांसेस रहेंगे, तो आपको ध्यान में रखने हैं सभी पॉइंट। गिव द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके हाथ में नोटबुक है, नोटबुक के साथ साथ आपके हाथ में पेन भी होगी, अच्छी तरह से ये क्वेश्चन लिखना। गिव द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। एक आपको कुछ गुजराती में और हिंदी और इंग्लिश में कुछ दिख रहा है, वो आप डिक्टेट कर देना, 2-3 बार लिखना, 2-3 बार पढ़ना अच्छी तरह से। अगर ये दिमाग में आपके सेट हो गया तो नीचे दिखाई दिया आपको ये 4 पॉइंट जो है वो आपकी जेब में, आपका मार्क आपकी जेब में, कोई आपको 5 में से 5 या 3 में से 3 लेने के लिए कोई आपको बीट नहीं करेगा। यू आर द विनर। बट व्हेन इफ यू लर्न दिस, इफ यू डिक्टेट एंड if you are getting in your mind LBS learn by heart, करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, मगर ये 4 पॉइंट अगर याद रखने हैं तो ये एक लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक लाइन से 4 पॉइंट बन जाएंगे। एक लाइन क्या है? एक फैक्ट ये है कि चेंज को सपोर्ट करोगे तो इजी लाइफ होगी। अगर जो चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ में चेंजेस आते हैं, उनका अगर हम सपोर्ट करेंगे तो लाइफ इजी बन जाएगी। बस यही फैक्ट है। क्या है? एक फैक्ट यही है कि चेंज को सपोर्ट करोगे तो इजी लाइफ बन जाएगी। आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या फैक्ट है? कि एक फैक्ट यही कि चेंज को सपोर्ट करो। हमें किसको सपोर्ट करना है? जो चेंजेस आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं लाइफ के अंदर, उनको सपोर्ट करना चाहिए हमें, तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। ये हमारा फैक्ट है। बस ये दिमाग में रख के सेंटेंस बनाया है हमने। एक फैक्ट ये है कि चेंज को सपोर्ट करोगे तो लाइफ इजी होगी। अब ये क्या है, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, आपकी नोटबुक में आप अच्छी तरह से लिख देना। रिवीजन राउंड के अंदर अच्छी तरह से ये अगर बात दिमाग में सेट होगी तो कैसे क्वेश्चन लिखने वो आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट है एक फैक्ट। फैक्ट से हमें जाना है। फैक्ट यानी ये फैक्ट, यहां से हम पकड़ेंगे पॉइंट को। फैक्ट किसका? फैक्ट टू मेक प्रेजेंटेशन इज ऑफ फैक्ट। यानी जो यहाँ पे सेक्शन डी के अंदर आपको जो पूछा गया है उनका क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझना। पहले तो गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंस क्या है उसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट कौन कौन से है, वो कैसे हमें स्टैटिस्टिकल डेटा इकोनॉमिक स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट बनाएंगे। यानी जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो वो अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से उनका दिमाग में सेट करना कि कौन से क्वेश्चन है, वो क्या बता रहे हैं, वरना सभी पॉइंट आप दूसरों के लिख दोगे, यू आर नॉट एबल टू गुड मार्क्स।
to make presentation of fact, to make presentations of fact, इस बीच में गलत है थोड़ा, यहाँ पे आप करेक्ट कर देना, आपके नोटबुक के अंदर इसको निकाल देना, to make precise presents is facts of facts, sorry. With the help of statistical information in graph, fact about the economic parameter can be represented more clearly. For example, graphs showing inflation, agriculture production, regional disparities, income can give the precise and क्लियर पिक्चर ऑफ देयर ट्रेंड्स, यानी किसी लंबी बात को छोटी करना, दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज। छोटी बात को अच्छी तरह से समझना वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर डेटा आपके पास है, उस डेटा को अगर आप प्रेजेंट करोगे ग्राफ थ्रू, डायग्राम थ्रू, तो अच्छी तरह से, अगर अनपढ़ यानी ले पर्सन है वो भी अच्छी तरह से आपके स्टेटिस्टिकल डेटा जो आपके पास इकट्ठे हुए हैं उनको आपने प्रेजेंट किया है अपने ग्राफ के अंदर, डायग्राम के अंदर, आपने पिक्चर थ्रू आपके डेटा को आपने अगर दिखा है तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सो द पिक्चर ऑफ देयर ट्रेंड्स विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द लेमैन। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अलग अलग तरह के ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हमने कोई भी एंगल से याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट पॉइंट जो आपके बुक के अंदर है इट सपोर्ट्स ऑफ कन्फर्म एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल वही पहले लिखना है, कोई भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, मगर 4 पॉइंट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक फैक्ट ये है कि चेंज, अब चेंज क्या है तो चेंजिंग में चेंज है, यहाँ पे चेंज है, ध्यान में रखना कौन से पॉइंट को कहाँ यूज करना है ये दिमाग में रखना है। चेंजिंग मीन्स व्हाट, टू नो अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर, टू नो अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स पैरामीटर। यहाँ पे with the help of statistical information, we can know the direction and the magnitude of the change in the economics parameter. For example, to know the changing pattern of the sales revenue of a firm, trend of employment in nation, etc., the statistical data and information play an important role. आपके हाथ में अगर स्टेटिस्टिकल डेटा है तो आप उनके पैरामीटर के ट्रेंड के बारे में जान सकते हो। अगर लगातार, मैंने आगे बोला कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम लगातार बढ़ रहे हैं, 50% पे से 40%, 40% पे से 30%, 30 पे से 20, अभी भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा ये 40, 30, 20 नजर आ रहे हैं, डेट इज हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये डेटा इंफॉर्मेशन है इकोनॉमिक के अंदर। वो इंफॉर्मेशन अगर स्टेटिस्टिकल के हिसाब से हम ले रहे हैं तो वी कैन गेट द ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के हम ट्रेंड को पढ़ सकते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि अच्छी तरह से हमारा इकोनॉमिक्स वर्क कर रहा है। 40% की 30, 30 पे से 20, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन है वो हो रहा है, सप्लाई लेबर बढ़ रहे हैं, उनके सामने उनको रोजगारी भी मिल रही है, तो ये ट्रेंड ले सकते हैं। सेकंड, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971 ऐसे ऐसे करके 2011 तक के अगर हम हमारे सेंसस की पॉपुलेशन के अगर डेटा देखें तो उसके अंदर लगातार इंक्रीमेंट हो रही है, लगातार बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, तो वो भी हम ट्रेंड इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से पता कर सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। दैट विल क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी आर आल्सो देयर विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। सो हमारा सेकंड पॉइंट है चेंजिंग, दैट इज टू नो अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स इकोनॉमिक पैरामीटर। थर्ड पॉइंट, एक फैक्ट ये है कि चेंज को सपोर्ट का यहाँ पे इंग्लिश वर्ड सपोर्ट, यानी इट सपोर्ट्स और कंफर्म एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है वो अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा। इकोनॉमिक्स ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंटिफिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ अदर्स theories to test the validity or such theories in real life at different times and place. Information from real life activities is necessary. Such information can be collected and presented in quantitative terms with the help of statistical tools. For example, data on price of a commodity and its demand can help to confirm the theoretical relationship established by the economics. इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे रूल्स हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर देखे, सॉरी थर्ड और फोर्थ चैप्टर के अंदर, यानी लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई हमने देखे। इट इज थियरी प्रूव्ड बाय द इकोनॉमिक्स दैट इफ द प्राइसेस इंक्रीज सप्लाई विल बी एक्सपांड, प्राइसेस डिक्रीज सप्लाई विल बी कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू एंड इनडायरेक्ट और inverse relationship between demand and price and demand. If the prices increase, demand contracts, and prices decrease, demand expands. This is the inverse relationship between demand and
price and demand. So how it proved? That is the way by the economics in terms of their data can represent in a tabular form in schedule. Then we can draw the diagram of it, and the slope of diagram can easily find out with the help of this type of statistical information data. So एक फैक्ट यही कि चेंज को सपोर्ट करो यानी हमारे जो भी डेटा मिलते हैं उनसे हमारे इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल है वो हम उनके जो कंफर्म करना है वो प्रूव करना है वो हम प्रूव कर सकते हैं. देन एक फैक्ट ये है कि चेंज को सपोर्ट करोगे तो लाइफ इजी बन जाएगी. इजी का मतलब यहाँ से हमें इजी लेना है. इजी यानी टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी. दो डेटा आपके पास है, 9th के रिजल्ट आपके हाथ में है, 10th के रिजल्ट आपके हाथ में है, यानी यू कैन कंपेयर योर डेटा इन मैनर ऑफ टाइम. अगर आपके इकोनॉमी के, आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के डेटा है और वो डेटा को अगर हम दूसरे कंट्री के प्रोडक्शन के डेटा के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कंट्री कहाँ पे है. इट इज only and only possible if the statistical information in our hand. अगर ये डेटा है हमारे पास तो हम कंपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट इज टाइम बेस्ड एंड सेकंड इज प्लेस बेस्ड. टू टाइप्स ऑफ कंपैरिजन कैन पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. तो ये क्वेश्चन हमारा सेक्शन डी या सेक्शन ई के लिए कंप्लीट हुआ. ये 4 पॉइंट दिमाग में रखने का हमने आपको तरीका बताया. एक फैक्ट ये है कि चेंज को सपोर्ट करोगे तो इजी लाइफ होगी. एक फैक्ट ये है कि चेंज को सपोर्ट करोगे तो लाइफ इजी होगी. नाउ सेकंड क्वेश्चंस. गिव एन आइडिया रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छी तरह से दिमाग में पढ़ना है. यहाँ पे बात हो रही है गिव एन आइडिया रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स. इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यहाँ पे वेस्टर्न इकोनॉमिक्स होता तो पूरा क्वेश्चन अलग. यहाँ पे कौन सा है? इंडियन इकोनॉमिक्स. गिव एन आइडिया रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमिक. तो ये पॉइंट है. इतना लिखोगे तो मार्क्स 0 है. ध्यान में रखना. ये सिर्फ पॉइंट है याद रखने के लिए क्वेश्चन को. तो पुरुष शास्त्र, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन आपको पता है वो. देन 2500 ईयर्स की बात करनी है हमें कौटिल्य के थॉट्स की. और देन इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर टेकन. ये सभी जो पूरी स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है. तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी के अंदर 4 पुरुष शास्त्र की बात होगी. PEI 2500. PEI 2500 ये याद रखना है हमें. P यानी पुरुष शास्त्र, E यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, I यानी इंडिया का फर्स्ट वर्ड और 2500 ईयर्स अगो. इंडिया PE 2500 ईयर्स अगो. अब पुरुष शास्त्र की बात आती है. सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में. ये सभी हमने कंप्लीट किया है, मगर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट को ध्यान में रख के लिखना है, ये बात हम कर रहे हैं. तो सबसे पहले गिव एन आइडिया रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमिक थॉट. फर्स्ट इज पुरुष शास्त्र. पुरुष शास्त्र के अंदर हमने देखा था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात होगी. तो धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, ये सभी हम अच्छी तरह से जानते हैं. अलग अलग उनके डेफिनेशन, उनकी अलग अलग बातें हमने डिस्कस की थी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की. और सभी का हमने पूरे डिटेल में डिस्कशन किया था. मगर यहाँ पे आपको अगर दिक्कत आ रही है कि कौन से क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, उनकी यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेटअप हो जाए कि अगर ऐसा पूछे गिव एन आइडिया रिगार्डिंग इंडियन, गिव एन आइडिया रिगार्डिंग इंडियन, ध्यान में रखना गिव एन आइडिया रिगार्डिंग इंडिया का पूछा है, कोई दूसरे का नहीं पूछा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उनका आंसर पुरुष शास्त्र यानी इंडिया. इन इंडियन इकोनॉमी थॉट्स the 4 Purush Shastra, that is purpose of human being, are dharma, religious, then earth, that is wealth, kama, that is desire, and moksha, that is liberalization. ये सभी की हमने बात कंप्लीट करनी है. Any activity done with the purpose of obtaining some benefit, it is called economic activity. ये economic activity second point, उनका हमें definition prove करनी है. Then 2500, 2500 years ago, Kautilya, also known as a Chanakya, in his book Arthashastra, presented the economics as a science explaining the purpose and utility of the wealth creation on the earth. And last point, in Indian thoughts, economics activity undertaken by the state or society did not consider only earth at center, but human well-being are also to be considered. Thus, Kautilya's economics was considered as ethic
एथिक यानी एक नीति शास्त्र बन गई कौटिल्य की। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, कि पहले हमें पुरुष शास्त्र की बात करनी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की, उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन देनी है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की बुक फेसबुक में ध्यान में रखना, there is some wrong spelling are there, it is very easy for recognize you because Facebook are very popular nowadays, so that कौटिल्य के फेसबुक नहीं मगर क्या याद रखने हैं, उनके टेक्स्ट बुक को, उनके टेक्स्ट बुक को भी नहीं, उन्होंने जो बुक लिखी है वो याद रखने के लिए यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, मगर यहाँ पे ध्यान में रखना है पुरुष शास्त्र का पी, इकोनॉमिक्स का 2500 ईयर शो, और बुक और 2500 का क्या, तो कौटिल्य को ध्यान में रखना है। और कौटिल्य ने कौन सी बुक यानी उनकी अर्थशास्त्र, ये बुक के साथ लेना देना है, फेसबुक को नहीं, उनकी बुक को लेना देना है। सिर्फ याद रखने के लिए एक तरीका है कि उनके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो एक बुक की बात आएगी, कौटिल्य की बात आएगी, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट क्या लिखे वो आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में उनकी डेफिनेशन इज कंसिडर ओनली एंड ओनली ह्यूमन वेलबींग was also required, मगर उन्होंने ह्यूमन वेलबींग की कोई बात नहीं की, उसकी वजह से कौटिल्य की जो डेफिनेशन थी कि ओनली कंसिडर एज एथिक। नाउ क्लैरिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो पॉइंट है आपके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन डी के लिए, क्योंकि ये 3 पॉइंट है, 3 मार्क्स के लिए भी हो सकते हैं या ज्यादा सेक्शन ई के लिए भी हो सकते हैं। क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ध्यान में रखना स्टैटिस्टिकल डेटा की इंपॉर्टेंस अलग है, और क्लैरिफाई बाय यू इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है वो आपको क्लैरिफाई करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे क्लैरिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर क्लैरिफाई द यू थोड़ा रॉन्ग है, ध्यान में रखना, देयर इज एरर इन टाइपिंग मिस्टेक हियर, so heartily sorry all of you, it is not for you. Clarify the importance of economics, clarify the importance of economics, the relevance of the economics as a philosophy as well as the science and increasing the human life, hence the study of economics is of much importance. It is clarified from the following points, ये points आपको डिस्कस करने हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, 3 points are there, understanding everyday behavior, second economic importance, and third professional decision making। यहाँ पे 3 ही पॉइंट है, understanding everyday, then importance, then professional। यहाँ पे ध्यान में रखना, हम 3 पॉइंट को कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का यू लेंगे, देन आफ्टर इकोनॉमिक्स का ई लेंगे और पी लेंगे, मगर कैसे याद करना है, पीयूसी वर्ड है आपको पता है, पीयूसी करवाते हैं राइट, तो पीयूसी नहीं करना है मगर पीयूई करना है, पी दैट इज प्रोफेशनल डिसीजन, पी का प्रोफेशनल डिसीजन, पीयूसी यू यानी अंडरस्टैंडिंग एवरीडे, यू या अंडरस्टैंडिंग एवरीडे, और सी पीयूसी सी नहीं मगर ई याद रखो, सी यहाँ पे है मगर स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स से, सी से मत स्टार्ट करना, इकोनॉमिक्स से, यानी P professional decision making, second U understanding everyday behavior, and then E economics importance। अब तीनों के अंदर 2 पॉइंट ऐसे जिसके अंदर कुछ ना कुछ है, यानी अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर के अंदर 2 पॉइंट है। अब हाई तो हम हर एक को करते, हाई ऐसे करते हम, तो H और I पे से ये पॉइंट बना है, H और I में से H और I के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पे दिख रही है आपको ये अंडरलाइन और ये अंडरलाइन। सो हाउ टू रिमेम्बर दैट इज ट्रिक कि अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर के 2 पॉइंट है, कौन से 2 पॉइंट हो सकता है, हाई पॉइंट को याद रखने के लिए क्या बनाया हमने, हाई बना दिया है। तो हाई का मतलब एच का मतलब अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, हाई में एच क्या है, हिस्ट्री, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स, और आई के अंदर क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स, ये दोनों के अंदर एच आई छिपा है, एच यानी हाई करते हैं ना हम एक दूसरे को, हाई बाय ऐसा करते हैं ना, तो हाई से हिस्टोरिकल इवेंट्स और आई से इंटरनेशनल इवेंट्स। सेकंड है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस, उसके अंदर 2 पॉइंट है, उसका यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट का डिसीजन रॉन्ग नहीं होता, गवर्नमेंट का डिसीजन रॉन्ग होता ही नहीं है, गवर्नमेंट का डिसीजन रॉन्ग होता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट को पकड़ना है हमें, कहाँ से, यहाँ से, ये गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट का। अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट का डिसीजन यानी डिसीजन लेना है अब, तो डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल, तो ये थोड़ा सा कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी बहुत सारे लेने देने हमें मार्क में पड़ेंगे
अगर ये पॉइंट दिमाग में हाई और गवर्नमेंट का डिसीजन रॉन्ग नहीं होता तो आपके 4 पॉइंट आपकी जेब में, पॉइंट जेब में कब होगा, जब आप अपनी नोटबुक के अंदर ये पॉइंट आप जो लिख रहे हैं उसके बाजू में ये ब्रैकेट में जो लिखा है कैसे याद रखना है वो आप लिख दोगे तो अच्छी तरह से आप लिख पाओगे। या आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये लिख दो, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर के बाजू में हाई लिख दो, हाई का एच के अंडरलाइन करो हिस्टोरिकल इवेंट्स और आई के नीचे अंडरलाइन करो। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में ही होना चाहिए, सीक्वेंस ब्रेक करोगे तो भी चलेगा। आई रिक्वायर योर पॉइंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो गवर्नमेंट का डिसीजन रॉन्ग होता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट के अंडरलाइन करो यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, और सेकंड टू मेकिंग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल, और प्रोफेशनल डिसीजन। ये 3 पॉइंट है हमारे लिए। तो जब क्लैरिफाई the importance of economics, you done me mat rahe, I repeat again, heartily sorry. Clarify the importance of economics, clarify the importance of economics। तो उसके अंदर आपको स्टार्ट करना है अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर। इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट, यहाँ पे हमने एच आई पे एच किया करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर हम बात करें तो नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द बेटर द हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक वॉर, the entry of East India Company in India for the trade, India's revolt in England during the British rule, labor movement, एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारी दुर्दशा हुई, वो हमारा जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेक्लाइन हो गया। दिस ऑल आर कैन ओनली एंड ओनली वी कैन फाइंड with the help of historical event। Then international events. In modern times, with the increasing the information available to the public, they try to understand some international events like rise in the price in the crude oil internationally and some of the other activity. What are the value of Indian rupees in international market? These all are only and only possible with the help of understanding international event। Second point is economics importance, that is government का decision wrong नहीं होता। government का decision यानी government यानी second point of this second point, understanding the government policies। understanding the government policy में knowledge of economics is useful to understanding various economics policy of the government like tax policy, wages policy. People take decision regarding saving and investment according to the bank rate like repo rate, reverse repo rate. These all are very very important to making the economics decision। So understanding government policy, this is very clear now कि गवर्नमेंट कौन कौन से रेट चेंज करती है, टैक्स रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उससे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं वो भी हमें पता चल जाता है। देन डिसीजन मेकिंग बाय द इंडिविजुअल, people from all walk of life, household, lawyers, actors and other try to get maximum gain of their efforts, and with the help of this they can manage time and resources in optimum manners to increase their gains। This economics use the decision making। लॉयर है, एक्टर है, कोई भी है, वो मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं। कब प्राइस कम हो हम मुनाफा कर दे, कम प्राइस ज़्यादा हो हम डिमांड छोड़ दे। सेलर अगर होंगे तो प्राइस कब बढ़े और हमारा सप्लाई मार्केट में लाए, प्राइस कम हो तो हम कैसे उनको रिड्यूस कर दे। ये सभी ट्रिक इंडिविजुअल कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस। नाउ प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, देयर आर नो एनी सब पॉइंट आर देयर। Economic is useful in knowing the scientific principle and theory which is guide professional decision। Concept of revenue and cost, demand and supply are also useful this type of economics activities। Certain theories of economics help business in day-to-day decision, preparing the price, determination of the wages. These are very important। Then economic provides knowledge regarding the impact of the certain decision, provides insights into the problem to know the happens in the price। All human beings play a role as a consumer, produce and labor day to day and time to time changes। तो प्रोफेशनल डिसीजन बहुत सारे ले रहे हैं, कब कहाँ कैसे डिमांड करना, कैसे सप्लाई करना, लो ऑफ डिमांड लो ऑफ सप्लाई कैसे वर्क कर रहा है, उनके प्रिंसिपल क्या है, उनके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, उसके हिसाब से वो सब कुछ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गिव एन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट। ध्यान में रखना, पहले का जो क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने बोला था कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है यहाँ के इंडियन थॉट्स की, गिव एन आइडिया रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी, मगर जो ये क्वेश्चन है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं give an idea of development of economics as a science in the west। वेस्ट के अंदर जो
डेवलपमेंट हुई इकोनॉमिक्स की, उनकी हम बात करेंगे। तो पॉइंट काफी साफ है आपके सामने। अब आसानी से 5 पॉइंट में से ये 5वां पॉइंट है, 4 रिपीट हो रहा है यहाँ पे 4 नहीं 5 पॉइंट है टोटल। 5 पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट आपके हाथ में है। कैसे हाथ में है? तो 4 आप इकोनॉमिक्स के नाम तो पूरी तरह से अब फेमस हो गए। एक तो हमारे फादर एडम स्मिथ, हमारे प्रिंसिपल मार्शल, और रॉबिन्स जो है वो तो आती है बापू के साथ, और सैमुअल्सन। बापू आए तो हमें आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिली 1948 के अंदर, तो 1947 वाले कौन? तो सैमुअल्सन। तो 4 पॉइंट आपके दिमाग में ही है। फादर से स्टार्ट करेंगे, एडम स्मिथ से, उस एरिस्टोटल की बात बाद में करें। हम जो 4 को जानते हैं, कैसे याद रखना है, सबसे बड़े पॉइंट है कि वेस्ट के अंदर इकोनॉमिक्स के आइडिया कौन से है। वेस्ट के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। यहाँ पे जो 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, उनमें 4 तो इकोनॉमिक्स ही है, इकोनॉमिस्ट ही है, जिसमें एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकंड मार्शल, उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया, हमने उनको तो प्रिंसिपल ही बना दिया है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ने बुक लिखे। रॉबिन्स आए 1931 के अंदर बापू के साथ। बापू के साथ क्यों? क्योंकि 1930 के अंदर हमने दांडी यात्रा की थी। 1930 के अंदर उसके 1 साल में रॉबिन आ गए हमारे, और लास्ट में आए सैमुअल्सन, आज़ादी मिली के 1 साल पहले। तो ये सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम एरिस्टोटल की। उससे पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। रिपीट अगेन, ये साइंस का है, और सॉरी ये वेस्ट का है आइडिया, और वहां पे हमने टोटली बात की थी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन थॉट्स थी। तो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल गेव हिज व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स इन द बुक ऑफ इकोनॉमिका। काफी खतरनाक है, उसका नाम ध्यान में रखना, O economica, O economica. Repeat again, O economica. Aristotle book that is called O economica. Due to the specialization in the industrial sectors after industrial revolution, the knowledge of the philosophy also started getting classified into various specializations like physical science, social science also developed some special branches, and this science started applying scientific tools and methods to study independently the economics behavior of human being. ये हमें ध्यान में रखना है, ये सभी पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे। और साथ में ही जो एडम स्मिथ की बात आएगी उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हमें दिमाग में रखने, वो पॉइंट यहाँ पे लिखे। 1776 जो ईयर है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन, was written by Adam Smith in 1776 is very important. With this book, Adam Smith has pioneered the development of the economics as a specialized area of knowledge of in waste. Thus, Adam Smith has honored to start the study of economics independently and use scientific method, and hence he is called as a father of economics. Scientifically सब कुछ प्रूव करने की बात कर दी उन्होंने, और scientifically individually independently study की, that why they are known as a father of economics. According to Adam Smith, economics is a study of a nature and causes of wealth of nations. He has introduced economics as a social science. Who has introduced economics as a social science? That is Adam Smith. Since the times of Adam Smith, economics was studied as an independent science. He considered it an human welfare. इकोनॉमिक्स के अंदर एडम स्मिथ की बातें ऐसे हमें डिफाइन करनी है, डीप में लिखनी है, देन यू विल गेट प्रॉपर मार्क्स। देन मार्शल की बात होगी। मार्शल के ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। 1819 कैसे याद रखना है, 2-3 बार मैंने बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ। 1 + 8 = 9 और 0 हमारे भारत की खोज। मार्शल एक प्रिंसिपल के तौर पे हम जानते हैं उनको। That's why the book he has presented, that is Principle of Economics, published in 1819, introduced the economics as a science of material well-being. Material की बात की है उन्होंने अपने definition के अंदर। According to Marshall, economics is a study of mankind in the ordinary business life. Marshall definition identify economics as a study of everyday activity of human being and explain how well-being is attained from the मटेरियल कंजम्पशन। मटेरियल कंजम्पशन से हम जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड हो रही है, सप्लाई हो रहा है, जो भी हम बना रहे हैं प्रोडक्शन को, वो हम लेने के बाद कैसे उनको यूजफुल यूज करें, कैसे उनसे सेटिस्फैक्शन ले सके, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। दस इट टॉक्स ओनली अबाउट द मटेरियल वेलबींग, इग्नोर ऑल सर्विसेज के डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करना है कि उन्होंने सिर्फ वेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, अपने जो
कंजम्पशन जो करते हैं वो मटेरियल कंजम्पशन के बारे में, इमटेरियल की बात नहीं की। इमटेरियल का मतलब क्या? सर्विसेज डिपेंड ऑन डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स आर आल्सो यूजफुल इन सोसाइटी, दे निग्लेक्ट दिस ऑल, सो दैट द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर मार्शल आर नॉट वेरी पॉपुलर एज सम ऑफ द अदर। सो रॉबिन्स आ गए बापू के साथ आने वाले रॉबिन्स। रॉबिन का जो है वो 1931 के अंदर 1913 के अंदर 1913 नहीं, 1931 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इज 1931 के अंदर उन्होंने अपने डेफिनेशन को प्रूव किया था। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये उनकी बुक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर। जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो कैसे स्कैरसिटी वाले है और उनके जो यूजेज है वो अल्टरनेटिव है, उनको हम कैसे मैनेज करें वो उन्होंने अपने डेफिनेशन के अंदर बताया है। Human wants are unlimited, resources satisfying human wants are limited. According to Robinson's economics, deals with the problem of allocation of scarce resources that satisfy human wants and maximize possible extent. Thus, economics is a science of scarcity. उनका जो economics है वो science of scarcity बन गया। That why the nature of significance books is wrought by economics Robinson. And उन्होंने जो लिखा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी डिमांड जो है, हमारी डिजायर है वो अनलिमिटेड है, उनके सामने जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और वो अल्टरनेटिव यूज करते हैं, तो उन सभी के साथ कैसे बैलेंस किया जाए वो स्टडी उनके इकोनॉमिक्स के अंदर हुई है। नाउ लास्ट इज 1947 के अंदर हमारे सैमुअलसन आ गए। 1947 के अंदर सैमुअलसन इन हिज बुक फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, उसकी बुक का नाम है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। उनकी बुक के अंदर दे इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एज अ सिलेक्शन दैट इज कॉल्ड चॉइस एंड एलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज। सिलेक्शन की बात हुई है उनकी डेफिनेशन के अंदर, सिलेक्शन चॉइस की बात हुई एंड एलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज को अछत वाले है साधन हमारे पास रिसोर्सेज जिसका ज्यादातर मैक्सिमस नहीं हो रहा, जो लिमिटेड है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे हर एक को एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सो। According to Samuelson, economics is a study of how people and society ends up choosing to employ scarce productive resources which have alternative uses and distributing them for the consumption among people in the society। कैसे सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेस है उनको अच्छी तरह से काम करवाना, उनके पास अल्टरनेटिव यूजेस है तो उनको कैसे हम करें। अगर लैंड है तो लैंड के ऊपर बहुत सारे यूज हो सकते हैं, मगर लैंड लिमिटेड रिसोर्सेस है और हमारी डिमांड बहुत है, हमारी डिजायर अनलिमिटेड है, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है मैन पावर, सपोज हम किसी एक फैक्ट्री के अंदर काम करते दूसरी फैक्ट्री के अंदर जा नहीं सकते बिकॉज द लेबरर्स एंड लेबर आर नेवर बी इनडिवाइडेबल, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो उनको कैसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करना, सेटिस्फाइड उनकी डिमांड करना, उनको वेजेस कैसे पेड करना, ये सभी बातें सैमुअलसन के डेफिनेशन के अंदर हुई। ऑल डेफिनेशन पॉइंट आउट द इकोनॉमिक स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड एडॉप्ट साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज, हेंस इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। हर एक की डेफिनेशन जो वेस्ट में हुई वो काफी इंपॉर्टेंट रही है आप सभी के लिए। और दूसरा एक क्वेश्चन आपको लिखना है, राइट डाउन इन योर नोटबुक एवरीवन, प्लीज टेक पेन एंड पेज एंड नोटबुक एंड राइट डाउन द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट here discussing in this video, so you have to write as a homework. Write down, everyone write down please, everyone, those who are watching this video, all students of standard 11, how the statistical data presented in diagram or graph or state the points to be considered it। बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम, फायर डायग्राम की बात यहाँ पे होगी और पॉइंट टू बी कंसीडर व्हाइल प्रेजेंटिंग द डेटा इन द पैराग्राफ, sorry, in the graph or diagram, very very important, what points to be considered, repeat again, what point to be considered, everyone write down in your notebook, what points to be considered while presenting the data in the diagram or graph। diagram और graph अगर draw करते हो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, this is your homework also, this have, ये भी आपको लिखना है आपके नोटबुक के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुए, आई रिपीट अगेन, यहाँ पे जो सेक्शन सी और डी से जो स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन बी से जो स्टार्ट हो रहा है, वो आपको अपने नोटबुक के अंदर रिवीजन डाउन लिख के आपको लिखने हैं। वन लाइनर आंसर सभी 1 to 5 सभी लिखने हैं आपको। उसके बाद ये जो सी और डी के अंदर जो भी क्वेश्चन है उनका मेन पॉइंट और मेन पॉइंट के अंदर डीप में जो डिस्कशन हुए टेक्स्ट के अंदर से आपको लिखने हैं।
Yeah, if you have any digest or someone reference book, you can also use this. सेकंड सेक्शन ई के अंदर जो लिखे है वो टेक्स्ट बुक में से लिख सकते हो आप। ये सिर्फ पॉइंट है, इतने पॉइंट से नहीं चलेगा, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसी तरह से। ये भी आपको लिखने हैं क्लैरिफाई, ये पॉइंट भी लिखने हैं नोटबुक के अंदर। क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, द बीच में यू बीच में है वो गलत है, लिखना मत। देन गिव एन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट। और जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बोले, which points to be considered while presenting the data in the diagram? 3 points है, source of information that is data, clarity regarding dependence and independence variables, and selecting appropriate scale। तो ये सभी आपको लिखने हैं काफी अच्छी तरह से। ये पूरा रिवीजन राउंड हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट चैप्टर का। Thank you all for watching this video till the end and keep watching ICT Kafuri channel for the next chapter of second revision round that are also connected and broadcast on same channel. So those who are new viewers, please subscribe this channel, press bell button, and also install this ICT Kafuri channel. Sorry, from Play Store app, it will bring you so many details. So I am thankful all, and keep watching this ICT Coverage channel. You have to watch this video 2 to 3 times to clear your concept, clear your homeworks, and how to memorize, how to uh, remember all the points in section B and E. There are so many tricks are already discussed in this revision round, and you all have to dictate in your notebook or your textbook so that you can easily find out what are the tricks. You have to dictate in your textbook also and in notebook also so that you can easily find out what are the trick to remember the questions. So thank you all, thank you for the day.